सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मैं ताण दी ताण तू है मेरे स्वामी, मैं तुधिया गए अरदास। मैं होर थाऊं नहीं जिस पै करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, मैं होर थाऊं नहीं जिस पै करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, बेशुमार अथाह अगनत अतुल्य। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सतगुरु गुरु गरीब नवाज चबर छतर तख्त दे मालिक, बाणी के बोहित नाम के जहाज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी। तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी दे अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु प्यार वालिओ, बड़ी अपार कृपा रहमत सतगुरु जी ने वरताई है। जो मालिक जी की मेहर दे सदका गुरु चरनां विच जुड़ के बैठण दा सुभाग हासिल होया है। आओ गुरु प्यार वालिओ, जो धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित समूह इलाका निवासी ते गुरु घर दे प्रबंधकां वल्लों समागम उलीके गए ने। उन्हां समागमां दा अज तीसरा दिन है। लगातार गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन और उन्हां दे सिद्धांतां दी विचार आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हो। सतगुरु जी रहमत करन अज आपां भी सतगुरु तेग बहादुर पातशाह जी के जीवन और उन्हां दियां बख्शिश कीतियां होईयां सिक्ख्यावां और उन्हां दे पाए हुए पूरने जिहड़े ने उन्हां नूं विचारन की कोशिश यतन करना है। और नाल नाल जिथे आपां विचारन का यतन करना है
ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ। ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਸ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਵਾਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਦਬ ਸਹਿਤ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ 10 ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 10 ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਬਤੌਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਖੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ, 3 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 4 ਆਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭੇਟਾ ਉਹੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਥਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਦਬ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੋਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ,
ख्याल रखियो धन गुरु नानक साहब जी तो बाद विच धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के जीवन विच प्रचारक फेरियां ने बहुतात इलाकिਆਂ विच। गुरु हरगोबिंद साहब जी तो बाद विच धन गुरु तेग बहादुर साहब, क्योंकि जो गुरु हरगोबिंद साहब का जीवन पढ़ोगे तो तकरीबन सतगुरु पातशाह जी पंजाब की धरती उत्ते विचरते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब गुरु हरगोबिंद साहिब तो बाद विच धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ਜਿਹੜੇ पंजाब की धरती उत्ते भी विचरते हैं। पंजाब की धरती तो बाद विच हिंदुस्तान की धरती उत्ते भी विचरते हैं। हुण इत्थे लफ्ज़ मैं भारत हिंदुस्तान, क्योंकि सतगुरु पटना साहब भी चल के जाते हैं, आसाम की धरती ते भी चल के जाते, ढाके के इलाकों में भी धन गुरु तेग बहादुर साहब चल के जाते हैं। अज मैं पक्ष सिर्फ सतगुरु तेग बहादुर साहब जी के उन्होंने प्रचारक दौरियां का ही रखना है, जिन्हां प्रचारक दौरियां नूं बकायदा सतगुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने जीवन के अंदर कीता। ख्याल रखियो ढाके की इलाका, ढाके की धरती है। गुरु नानक साहिब जी उत्थे जा करके सिੱਖੀ का बूटा ला आए ने। सिੱਖੀ का बूटा लग्या उसे जगह के उत्ते ही सतगुरु नानक साहिब जी ने सिੱਖੀ ਦੇ बूटे के नाल नाल प्रचारक जिहड़े सिੱਖੀ ਦੇ उन्हां नूं बना के स्थापित किया। ख्याल रखियो जदों गुरु तेग बहादुर साहिब जी ढाके की धरती ते चल के जाते तो उत्थे बुलाकी दास नाम का एक सिख रहिंदा है। बुलाकी दास, वो जिहड़ा बुलाकी दास नाम का सिख है वह सतगुरु तेग बहादुर साहब नाल प्यार बहुत है। उसकी माता का बड़ा प्यार है, गुरु साहिब नाल प्रेम बहुत है। तो ढाके के इलाके की संगत जिहड़ी है ना, उहदा प्यार बहुत है गुरु नानक साहब दे नाल। हुण प्रेम तो गुरु नानक साहब नाल ही है ना सारिਆਂ ਦਾ, क्योंकि उत्थे धन गुरु नानक साहिब ने चरण पाए ने। प्यार किन्हां दे नाल है? गुरु नानक साहब दे नाल। हुण वो सारे दे सारे जिहड़े ना सिख ने, संगतां ने उत्थों दियां, वो सारियां दियां सारियां संगतां उतावलियां ने कि साडे कोल आ करके ते गुरु साहब सानू दर्शन ते दीदार बख्शिश करन। सतगुरु तेग बहादुर साहब ढाके दे इलाके विच जांदे। बुलाकी दास नाम दे सिख नूं जदों मिले तो उहदी माता ने दर्शन कीते ते उहदी माता ने दर्शन करन तो बाद गुरु साहब अगे एक बेनती रखी। बेनती की है? मालिक पातशाह जी असीं चाहुंदे हां आप जी दे दर्शन सदैव हुंदे रहन, आप जी के दर्शनों की सदैव लालसा है। तो सदैव लालसा वास्ते असी चाहुंदे हां कि आप जी की एक तस्वीर बना के असी अपने कोल रख लईए। गुरु तेग बहादुर साहब वेले और तस्वीर बनाउण दा जदों उन्हां पक्ष रखिया तो गुरु तेग बहादुर साहब ने इनकार नहीं किया भी नहीं इदां नहीं हो सकता। सतगुरु कहंदे भी लै आओ तुसीं तस्वीर बनाउणी है बना लो। उन्हां एक असल रसूख रखण वाला चंगा तजुर्बेकार जिन्हों कह सकते हैं, अज की भाषा च गल करांगे तो चित्रकार पेंटर उन्हां लै आंदा भी जिहड़ा लिया के गुरु तेग बहादुर साहब की तस्वीर बनावे। हुण जिस वक्त उत्थे तस्वीर बनाउण दा कंसैप्ट चलदा, चित्रकार बड़ा वधिया है, वो कहंदा भी मेरे वर्गा चित्र कोई बना नहीं सकता, जैसा मैं तस्वीर बना सकता वैसी कोई भी नहीं। बड़ा असल राज घराने विच रखिया होया चित्रकार है, भी चेता रखियो। वो आया चल के उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सन्मुख बह गया, अपना चित्र बनाउण वास्ते कागज लैके बैठा। बड़ी कोशिश की, पहलों तो सोचता भी मैं साहिब जी दे चित्र की शुरुआत कित्थों करा। बड़ा यत्न किया, पहलों चेहरे तो शुरुआत करा पर चेहरा बने ना। उन्हें सतगुरु जी दे चरण कर कमल साहिब दे शरीर उत्ते धारण किए हुए वस्त्र सारा कुछ बना लिया। शुरुआत चेहरे तो करन लगा सी, चेहरा बनिया ना। चेहरे नूं छड्ड के बाकी सारा शरीर तैयार कर लिया, सारी तस्वीर तैयार कर ली, फिर बात चेहरे की आ गई। हुण चेहरा बने कित्थों? चेहरा बनावे किवें?
सतगुरु के चेहरे वाल, चेहरे का जिहड़ा तेज है, प्रताप है, वह झलिया नहीं जाता, नुहार वेखी नहीं जाती। सतगुरु जी के चेहरे का तेज ही इतना है। वो चित्रकार चित्र बनाना चाहता, चित्र बनता कोई नहीं। उन्होंने जदों थोड़ी जी अपनी कलम चलाउंदा है, जदों थोड़ा जिहा अपना ब्रश चलाउंदा है, तो वह चलाउंदियां वेखदा है भी जिस ढंग नाल मैं तस्वीर बना रहा, सतगुरु का चेहरा इहदे तो किते सुंदर है। इनकारी हो जाता है भी नहीं। उस तो बाद विच चित्रकार अपनी कलम, अपनी वो पेंट करने वाले, चित्र बनाने वाले सारे जिन्ने इंस्ट्रूमेंट सी छड्ड के पासे हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब नूं कहंदा भी मालका चेहरा नहीं हो मैं बना सकता, चेहरा तुसीं आप बनाओ। ते उस वक्त इतिहासकार गवाही भरदे भी धन गुरु तेग बहादुर साहब ने उत्थे चेहरा नहीं, उस जगह के उत्ते सतगुरु पातशाह ने गुरु नानक के घर का सिद्धांत झोली विच पाया भी गुरु के सिखो, सिख एक अकाल का पुजारी है, ना कि तस्वीरां दा। सिख एक अकाल का पुजारी है, रब का पुजारी है, ये तस्वीरां का पुजारी नहीं है। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने उस जगह के उत्ते उपदेश ये दिता भी जदों भी गुरु के दर्शनां नूं मन लोचे, जदों भी गुरु के दीदारां नूं मन विच इच्छा प्रगट होवे, उस वक्त तस्वीर वाल नहीं, उस वक्त गुरु की बाणी वाल झात मार के वेखो, बाणी विचों गुरु के दर्शन होणगे। और अज आपां कह सकते हैं जे सरीरक तौर पर वेखांगे तो की अज सतगुरु नानक साहब तो लैके गुरु कलगीधर साहब तक साडे कोल किहड़े गुरु साहब ने? सरीरक तौर पर तो कोई भी नहीं। पर की जे अज असीं गुरु नानक साहब के दर्शन करने होण या गुरु तेग बहादुर साहब के दीदार करने होण ते असीं की आखांगे भी हुण साडे सामने तस्वीर लैके आओ भी असीं दर्शन करिए? नहीं। ख्याल रखो धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की बाणी साडे सामने है। एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक 1430 अंग साडे सामने ने। ये 1430 अंग जेड़े ने ना, ये गुरु के दर्शनां वास्ते ते बाणी विच मालिक पातशाह जिक्र करते मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलब करै चातरिक कीने आई। जदों किते दर्शनां दी लालसा जागे तो फिर सतगुरु अगे हथ जोड़ के किते साडा मन आखे दर्शन मांगो दे प्यारे, हे अकाल पुरख परमेश्वर मैं तेरे कोलों तेरे दर्शन ते दीदार मंगदा, किरपा कर मेरी झोली विच अपने दीदार पा। किते हाथ जोड़ के सानू आखण दी जाच आ जाए दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, ए बेनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम कर अपने चेहरे, अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किन्ने विरले जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसै मेरे चीता, नानक एक करे अरदास विसर नाही पूर्ण गुरदास। किते हाथ जोड़ के आखण दी जाच आ जाए दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवों अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। किते ओ सतगुरु तेग बहादुर साहब दा बख्शिश किया होया सिद्धांत सानू अपने जीवनां विच कमाउण दी जाच आ जाए। फिर चेता रखियो ढाके दी धरती है जिस जगह के उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब लगातार 1 साल का समा गुजारते हैं। उसे ढाके के इलाके विच रहिंदियां होया गुरु तेग बहादुर साहब कोल गोबिंद राय जी के अवतार की खबर पहुँचती है। उसे इलाके विच रहिंदे आ सतगुरु गोबिंद राय जी का नाम गुरु साहब ने रखिया। संगतां तक हुक्मनामे भेजे। मालिक जी ने अपनी खुशी का जिहड़ा प्रगटावा उत्थे रह के सतगुरु जी ने किया और वो जिहड़ा खुशी का प्रगटावा सी उस जगह ते रह के करन दा कारण ते संगतां नूं हुक्मनामे भेजण दा कारण ये सी भी अजे सानू इस धरती के उत्ते समा लगेगा भी असीं अजे पटना साहब की धरती ते पहुँच नहीं सकते। और कह सकते हैं भी पहला पिता है संसार का ते पहला ही पुत्र है
ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਢਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਢਾਕੇ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 2 ਚੋਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਖੋਲ ਲਏ। ਘੋੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਸਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ।
लिया के उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब सामने पेश करता। और एक गुरु नानक का घर है जिस जगह के उत्ते आके चोर भी साध बन जाता है। गुरु नानक का घर है जिस जगह के उत्ते आके औगण कमाउण वाला भी गुणवान बन जाता है, गुणा का खजाना बन जाता। वो बदकिस्मती होएगी जिहड़ा इस दर ते आके भी औगण कमा के चले है। उन्होंने मारन की की लोड़ है, वो तो पहले ही मारिया होया है। उन्होंने कुट्टण वो तो खुद पहलों मरिया होया है, उन्होंने मारन की जरूरत नहीं है, उन्होंने कुट्टण की की जरूरत है, वो तो खुद मर चुका है। मरिया तो इस दर ते आके औगण कमाउण लगा ना, मरिया होया तो इत्थे आके पाप करन लगा है, मरिया होया तो इत्थे आके वो कर्म करन लगा जिन्हों दुनिया कहती है कि यह कर्म चंगा नहीं है, जिन्हों गुरबाणी कहती है चोर की हामा भरे ना कोई, चोर की आ चंगा क्यों होए जे वो इस दर ते आके फिर भी वो कर्म कर रहा है। सानू मारन की की लोड़ है, वो तो पहलों मारिया होया। वो दोवें चल के आ गए, सतगुरु के सामने पेश किया। जे तो आप अपनी मत नाल सोचीए फिर तो यही कहांगे भी गुरु साहब ने क्या होना भी ला दो फांसी इन्हों भी, ये घोड़े किवें लै गए। पर नहीं, सतगुरु ने बड़े प्यार नाल उन्होंने समझाया, उपदेश दिता। और दोवां गुरु के दर ते जिहड़े चोर बन के आए ना, मालिक ने सिक्खी दी दात दोवां दी झोली विच पाई। ओही दोवें गुरु के सिख बनते, सेवक बनते ते मालिक दे दर ते हाथ जोड़ के गुरु अगे अरजोइयां करते ने भी सतगुरा किते रहमत कर, हुण जिथे सिक्खी साडी झोली विच पाई, अपनी सेवा दी दात साडी झोली च पा। जिहड़े आए चोरी करन वास्ते। मैं ये पक्ष तां रख रहा भी गुरु तेग बहादुर साहब जी की शख्सियत है, उन्होंने जीवन को आप विचारते जाना है। आने वाले दिनों में भी आप संगत ने उन्होंने जीवन काल जिहड़ा वो सरवण करना है। शहादत आप जी ने कई बार उन्होंने सरवण की, वो सारा जीवन पक्ष है। पर क्यों ना असी उन्होंने जीवन दे विचों वो घटनावां जिहड़ियां उन्होंने साझियां करिए जिन्हां तो असी अजे तक अणजाण हो के बैठे हुए हैं। बहुतात घट गिणती मिलेगी जिथे आपां ये कहांगे भी सानू इन्ना पता है भी गुरु तेग बहादुर साहब जी वख-वख इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ भी विचरते रहे। सतगुरु पातशाह कला पटना साहब की धरती ते नहीं विचरे, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो जीवन को पढ़ोगे ना, तो जीवन को पढ़न तो बाद हुण ढाके की धरती उत्ते ही राजा राम सिंह है जिहड़ा चल के गुरु साहब के दर ते आ जाता है। और चल के क्यों आउंदा है भी सतगुरु पातशाह जी मैं एक मुहिम ते चढ़न लग्या, मैं एक जंग ते चलिया, कामरूप देश की जंग जितन वास्ते मैं जाना है। तो वो कामरूप देश की जिहड़ी जंग है वो अज तक कोई जित नहीं सकिया। इतिहासकार इस गल की गवाही भरते हैं, कहते भी उस देश के अंदर जादू टूणे उत्ते विश्वास बहुत किया जाता है, भरोसा बहुत किया जाता है। तो जिहड़े उत्थों का राजा है वो राजे नूं इन्ना भरोसा है जादू टोणियां दे उत्ते कि उहदे सामने कोई खड़ ही नहीं सकता, जंग करने वास्ते नहीं खड़ सकता। औरंगजेब उहदे अगे जंग करन तो हार गया, औरंगजेब नहीं जित सकिया। हुण राजा राम सिंह जिहड़ा है इहनूं पता है भी जे मैं गुरु तेग बहादुर साहब नूं नाल लैके जावां तो फिर मैं जंग जरूर जित जावांगा। और हैरानी की गल फिर मैं कल के दीवाना विच आप संगतां दे चरनां च दुख निवारण साहब तो भी बेनती की सी भी धर्म सानू इकट्ठियां होके बैठना सिखाउंदा है, लड़ना नहीं सिखाउंदा कोई होवे। और बेनती करदे मैं जिक्र कीता सी दो चीज़ां ने, धर्म दा पैगंबर ते धर्म दा पैरोकार। धर्म का पैगंबर कदे माड़ा नहीं होया,
जिन्हें धर्म की शुरुआत करनी है ना, जब जिथों धर्म की शुरुआत हो रही है वो कदे माड़ा नहीं होया, वो सदा ही चंगा होंदा है। पर धर्म के पैगंबर तो बाद विच जिहड़े धर्म के पैरोकार ने ना, उन्हां दे जीवनां विच अक्सर गिरावटां आ जांदियां ने। और बेनती करदिआं मैं जिक्र कीता सी भी गुरु नानक साहब ने सिੱਖੀ बड़ी सौखी जी साडी झोली च पाई। वो साडे धर्म के पैगंबर ने सिੱਖੀ साडी झोली च पाई। और इन्नी सौखी सी सिੱਖੀ कि गुरु नानक साहब तो लैके गुरु कलगीधर साहब के दर ते ना एक सनातन धर्म के मनुख चल के आउंदे, दूसरे धर्म के मनुख चल के आउंदे। उन्हां आके गुरु कलगीधर साहब नूं अपनी रचना तो बचन आखे सी भी सतगुरु जी तुहाडी सिੱਖੀ इन्नी सुखाली भी ना कुछ कर्म करन दी जरूरत, ना कोई वखरा रूप बनाउण दी जरूरत, जिद्दां दा उस अल्लाह पाक वल्लों रूप दिता गया बस उसे नूं साਂਭਦਿਆਂ चंगे कर्म करने आ तुहाडी सिੱਖੀ है। तो अज सिੱਖੀ की परिभाषा असीं की बनाते, पुछ के वेखो हाँ किसी को सिੱਖੀ धारण करनी है, वो अगों यही कहता नहीं जी इन्ना औखा काम साडे तो नहीं होना। किड्डे सुखाले धर्म नूं भी अज असीं कठिन बना के रख के दिता। खैर जिहड़ा मैं पक्ष रखन लग्या सां, पैगंबर दा कर्म हुंदा है कि समाज अंदर धर्म की बात करदिआं, धर्म का प्रचार करदिआं समाज नूं एकत्र करके बिठाउणा। किसी धर्म की आरंभता का इतिहास पढ़ लो, किसी धर्म का, कल्ले सिੱਖੀ का नहीं, चाहे सनातन धर्म की गल कर लो, चाहे इस्लाम धर्म की गल कर लो, चाहे बोधियां के धर्म की, जैनियां के धर्म की गल, किसी धर्म की आरंभता की बात कर लो। हर धर्म के पैगंबर ने जिथे जाके धर्म की गल की उत्थे प्रेम ते प्यार की बात की है। हर धर्म का पैगंबर प्यार ते प्रेम की बात ही करता है। अगां उहदे पैरोकार ने जिहड़े धर्म के नाम उत्ते झगड़े पा के बैठे ने। ते अज हालात की ने, अज भी तो धर्म के नाम से झगड़े ही ने। ये तो साडी एक दुखांत कह सकते हैं भी धर्म ने सानू इकट्ठियां होके बैठना सिखाया, पर असी धर्म के झंडे हेठां इकट्ठे होने की बजाय अपने अपने धर्म के झंडे फड़ के ते लड़ के बह के एक दूजे नाल, तू दूजे धर्म का मैं दूजे का, तेरा धर्म माड़ा वो कहंदा तेरा माड़ा है। बस इसे कर्म च ही असीं रह गए। ये पता ही नहीं लगा भी धर्म कमाउणा सी, लड़ना थोड़ी सी। गुरु तेग बहादुर साहब नूं राजा राम सिंह अपने नाल लै गया। हुण राजा ते गया मुहिम ते चढ़ के, काहदे लई गया? जंग करन वास्ते। नाल किहनूं लैके चले आ? गुरु तेग बहादुर साहब चले आ कित्थे आ? कामरूप देश दे उत्ते राज, उत्थों दा राज जितण वास्ते चले आ। उत्थे गए, हुण जिद्दां दा दूसरे राजे वालों वरताओ होना सी, सुभाविक जी गल है भी उदां दा ही कीता जाना। जे किसी उत्ते आपां चढ़ के जाइए तो अगला सानू प्यार नाल स्वागत थोड़ी साडा करेगा। सुभाविक जी गल है भी वो जंग दे लई बिगल वजाएगा। उन्हें भी जंग की शुरुआत करती, उन्हें जिन्ना क जोर उन्हें लाउणा सी ला लिया। मैं पहलों जिक्र किया भी इतिहासकार गवाही भरदे भी उस धरती दे उत्ते जादू टूणे की बात चलती है। उत्थों के लोग जादू टूणे करते हैं। जादू टूणे करदियां होया राजा बड़ा अपने आप को उच्चा तो समझदा है भी मेरे उत्ते आके कोई काबज नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर साहब नाल गए राजा राम सिंह दे, उन्हें बड़ा ज़्यादा जोर लाया पर एक भी यतन उन्हों का काम ना आया। जो सारे यतन खत्म हो गए, फिर उत्थों का राजा सोचता है भी ये कोई आम शख्स नहीं है, जिहड़ा हुण साडे खिलाफ लड़न आया ना, ये कोई आम नहीं है। ਉਹੀ राजा जिन्हों जितण वास्ते वड्डे वड्डे राजे हथ खड़े कर गए भी असीं जित नहीं सकते, वो राम सिंह दे कोल खुद चल के आउंदा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब की रहमत वेखो, दोवां राजियां नूं लड़ाउण दी बजाय मालिक ने इकट्ठियां बिठाता भी लड़ना नहीं। इत्थे प्यार की बात है,
इत्थे विरोध नहीं, इत्थे सिर्फ प्यार है। और धर्म का मकसद ही प्यार जे, धर्म का मकसद झगड़ा नहीं होवे। सनातन धर्म का होवे, दूसरे धर्म का होवे, तीसरे धर्म, असी उस दे धर्म नूं माड़ा क्यों आखीए? उहदा धर्म उहनूं मुबारक है, तो साडा फर्ज की बनदा? मैं अपने धर्म के नियमां की पालना करां, ते मेरे धर्म का नियम ये सिखाउंदा है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। मेरा धर्म ये सिखाउंदा है। साडे धर्म ने तो सानू ये सिखाया। हुण इतिहास पढ़ के वेखो, आपां गुरु तेग बहादुर साहब जी इतिहास विचों पक्ष लैंदे चलीए। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी नूं औरंगजेब अत्याचार ते जुल्म करदा है। किन्ने अत्याचार जुल्म कीते उहने, इन्ने अत्याचार ते जुल्म कीते भी अखीर चांदनी चौंक विचों शहीद करन वास्ते तैयार हो गया भी मौत के घाट उतार दिओ। और बकायदा किते इतिहास के पन्ने फरोल के वेखियो, दिल्ली के चांदनी चौंक दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शहीद करन तो बाद विच इत्थों तक औरंगजेब की नीति सी कि शरीर के 4 टुकड़े करके दिल्ली के चारे दरवाजियां ते टंगने एक एक टुकड़ा, तां जो अगे तो समय की सरकार नाल औरंगजेब नाल मत्था लाउण वाले नूं पता लग सके भी हशर की हुंदा है। जिस वक्त सतगुरु तेग बहादुर साहब के खिलाफ औरंगजेब फतवा लाउंदा है, कि इतिहास का पन्ना गवाही भरदा है भी औरंगजेब तेरा कख ना रहे, भी सतगुरु तेग बहादुर साहब ने आख्या होवे भी तेरा कख ना रहे। नहीं, गुरु कलगीधर साहब ने जफरनामा लिखिया, सिख इतिहास का दूसरा जफरनामा है। पहला जफरनामा गुरु हरकृष्ण साहब लिखते, उन्होंने भी औरंगजेब नूं लिखिया। औरंगजेब नूं जफरनामा लिख के औरंगजेब दे कीते हुए हर एक कर्म नूं चेता कराया, औरंगजेब तू वधीकियां बहुत कीतियां ने, बड़ा अत्याचार किया, मेरे शहजादे साहिबजादे शहीद करवाते, आनंदपुर साहब का किला छड़वाता, सारा कुछ कर लिया तू, ते तू अपने आप को अल्लाह का सेवक कहना है, अल्लाह का अपने आप को दास आखदा है। औरंगजेब नूं सतगुरु जी ने जफरनामे विच इहो जिक्र करदे आख्या सी ना, अल्लाह ने तेरा साथ नहीं देना, ते ओ अल्लाह साडे नाल खड़ोता है। पर गुरु कलगीधर साहब ने भी औरंगजेब नूं ये नहीं सी आख्या कि औरंगजेब तेरा कख ना रहे। धर्म ने इहो सिखाया सानू, ते असी धर्म के नाम उत्ते झगड़े पा के क्यों बैठे हैं? असी धर्म के नाम उत्ते झमेलियां विच क्यों बैठे हैं? ते साडा फर्ज, साडा मकसद भी इहो बनदा है, जदों धर्म की बात करिए ते उदों जो गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत है वो साडे जीवनां विचों नज़र आवे। मानस की जात सब है एक है पहचान वो, साडे जीवना चो नज़र आवे एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। वाकई जिस इंसान ने अपनी जिंदगी दे अंदर धर्म कमाना सीख लिया ना, ओदी जुबान ही आखेगी मैनू इत्थों कोई मंदा कोई चंगा नज़र नहीं आता, मैनू सारी उस अकाल पुरख रब दे बंदे नज़र आउंदे जिन्हें धर्म कमाना सीख लिया। इतिहास का मैं एक होर पक्ष रख के समाप्ति वाले पासे आ जाना। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने उन्होंने दोवां राजियां नूं इकट्ठियां करके बिठाता, ते ओही राज अजे भी उही राजा कर रहे हैं। ये नहीं भी कामरूप देश का राजा बदल गया, हुण तो सगों संबंध बड़े प्रेम वाले बन गए ना। ते अज हालातां नूं समझ के चलीए, धर्म के नाम उत्ते झगड़े झमेले अज भी ने, ते समझदारी तो कारज लैंदियां काम लैंदियां गुरु नानक की बाणी तो सिक्ख्या लैके चलिओ। आ बेनती आप जी के चरणों च मैं करनी चाहना। मुबारक है
हर इंसान का धर्म उस इंसान, पर मजहबां के नाम उत्ते झगड़ा नहीं, इंसानियत के नाम उत्ते धर्म कमाना सीखिए। मजहब के नाम उत्ते झगड़ा नहीं, इंसानियत के नाम उत्ते धर्म कमाना सीखिए। क्योंकि धर्म बाद विच है, मजहब बाद विच है, असी सारे पहलों इंसान हाँ। तो इंसान होने के नाते साडा फर्ज बनता है असी इंसानियत कमाईए। गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन इस गल की प्रौढ़ता करता है। क्योंकि जे तो धर्म की गल आउंदी, जिवें अज झगड़े ते झमेले चलते हैं, तो गुरु तेग बहादुर साहब कदे हम ही ना भरदे भी औरंगजेब नूं जाके कह दिओ साडा गुरु गुरु तेग बहादुर है, जे उहदा धर्म तब्दील कर लओगे असी आपे धर्म छड्ड देंगे। जे अज दे अनुसार चलांगे फिर कदे भी हामी नहीं सी भरनी गुरु तेग बहादुर साहब ने। पर इंसानियत कोले है, वो सिद्धांत कोले है जिहड़ा सिद्धांत गुरु नानक दे करदा है, जिस करके अपने दर ते आए हर मजलूम, हर एक गरीब, हर एक जिहड़ा भी गुरबा चल के सतगुरु के दर ते आया, मालिक ने उन्होंने आए नूं निवाजिया, उहदी झोली विच बख्शिशां पाईयां। बस बेनती आप जी के चरणों च धर्म के नाम ते झगड़े झमेले छड्ड के असी इकट्ठे होके बैठना सीख लईए। जदों धर्म के नाम ते इकट्ठे होके बैठन लग जाएंगे फिर इंसानियत कमाउणी भी आ जाएगी, तो इंसानियत कमाउंदे असी अपने जीवन सफल करके जाइए। सतगुरु तेग बहादुर साहब दे अगे अरदास अरजोई जरूर निता प्रति करया करो। मालिक पातशाह कृपा करो किते तुहाडे पाए पूरनियां दे उत्ते सानू चलण दी जाच आ जाए, तुहाडे दरसाए मार्ग ते चलण दी जाच आ जाए। सतगुरु अगे अरदास भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। सतगुरु अगे निता प्रति अरदासां करते रहा करो। मालिक पातशाह जी धन गुरु ग्रंथ साहब जी का कोटान कोट शुकराना, कोटान कोट धन्नवाद सरबत संगत का, और कोटान कोट शुकराना समूह प्रबंधक वीरां दा जिन्हां ने आप रब वर्गियां संगतां दे दर्शन करवाए। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा बख्शणी। बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां। शब्दों तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार, ओ करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, कर तां तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान कीता गुर विटों जिस दियां ए वडियाइयां। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक ता सुख होआ तित घरे अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बेसूरे। दुख रोग संतापे उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी।
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ठाकुर